Good morning friends, welcome back to our channel. Today we are going to start lecture number 2 and that is about chapter number 3, linear equation in two variable. We have already discussed about this chapter. We have talked about the types of lines. Those are parallel, coincident and intersecting. Today we are going to start the word problem. That is the most important part of this chapter. Look at the variety of questions are there in this chapter, and this is really very important chapter for us for especially standard 10th. Problems regarding to age related problem, upstream downstream problem, speed related problem, these are the very important and board level questions. So carefully we will talk about these portions, and I hope you all are interested for this. Today we are going to start the problem that is related to age of two characters. Okay friends, so let's we start first example of exercise 3.1. What about this? Look at here. Aftab tells his daughter. Here there are two characters, Aftab and his daughter. Look at here. Two characters, Aftab and his daughter. 7 years ago, ago मतलब पहले. 7 years ago, I was 7 times as old as you. ये कौन कह रहा है? आफ्ताब कह रहा है. किसको कह रहा है? उसकी डॉटर को कह रहा है. 7 years ago, I was 7 times as old as you were. Also, 3 years from now, it means after 3 years, I shall be. This is also spoken by Aftab to his daughter. I shall be 3 times as old as you will be. This is the problem, and we have to represent these situations algebraically and graphically. Okay friends, remember in this types of example, whenever we have age related problem, we will assume present age of both character. Here we have both two characters, Aftab is in daughter, so we will suppose present age of them. So look at here, what is the solution? Present age of Aftab, that is equal to x years, and present age of his daughter, that is about y years. हम इस प्रकार के एग्जाम्पल में प्रेजेंट एज को ही सपोज करेंगे, फिर वो 10 साल पहले की दे दी हो या 10 साल बाद की दे दी हो, लेकिन हम सपोज करेंगे पहले प्रेजेंट एज, इसके बाद हम कंडीशन के तौर पे देखेंगे. ओके, तो प्रेजेंट एज मैंने सपोज कर ली. अब फर्स्ट कंडीशन देख रहा हूं मैं. फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही है? फर्स्ट कंडीशन में क्या लिखा है? लिखा है 7 years ago, 7 साल पहले. तो प्रेजेंट एज अभी x है, तो 7 साल पहले कितने हो सकती है? x माइनस 7. एक्सीलेंट. 7 years ago, एज ऑफ आफ्ताब equal to x minus 7 and age of his daughter equal to y minus 7. प्रेजेंट एज x और y सपोज की थी, तो 7 years ago, 7 साल पहले आफ्ताब की एज हो जाएगी x minus 7 एंड इस डॉटर की हो जाएगी y minus 7. ओके, तो 7 साल पहले की एज हमने डिफाइन कर ली. अब देखते हैं. 7 साल पहले I was 7 times as old as you. आफ्ताब कह रहा है कि मेरी एज जो है मेरी डॉटर से 7 साल पहले 7 टाइम्स थी. तो उसका कंडीशन क्या बनेगा? देखिए, आफ्ताब की एज है x माइनस 7, है ना. यहाँ पे डॉटर की एज हो जाएगी y माइनस 7. ये 7 साल पहले की एज है दोनों की, लेकिन 7 साल पहले आफ्ताब की जो एज है उसकी डॉटर से 7 टाइम्स है. मतलब ये हुआ कि आपको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डॉटर की एज को. अब पूरा इक्वेशन देखिए आप, ये है आफ्ताब की एज और ये है इसकी डॉटर की एज. देखिए, आफ्ताब की एज उसकी डॉटर की एज से 7 टाइम्स हो गई, राइट. अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सिंप्लीफाई करेंगे तो वी विल गेट x माइनस 7 इक्वल टू 7y माइनस कितना हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 बनेगा, राइट. अब ये 7 को इधर ला दूं मैं, तो x इक्वल टू 7y माइनस 49 प्लस 7, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 7y माइनस 49 प्लस 7, 42 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. यस, इक्वेशन नंबर 1. देखिए बच्चों, पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें एक इक्वेशन मिल गया x इक्वल टू 7y माइनस 42.
क्या किया, बहुत सिंपल है, हमने सबसे पहले प्रेजेंट एज सपोज कर ली, आफ्ताब की x मान ली, डॉटर की y मान ली। ओके, क्वेश्चन में ही लिखा था कि 7 साल पहले आफ्ताब की जो एज है वो उसकी डॉटर से 7 टाइम्स है। तो आफ्ताब की 7 साल पहले की एज x-7 हो गई, डॉटर की 7 इयर्स पहले की y-7 हो गई। याद देख सकते हैं, आफ्ताब की एज उसकी डॉटर से 7 टाइम्स मैंने लिख दी एल्जेब्रिकली, और उसको सिंप्लीफाई किया तो आई गॉट x = 7y - 42। फ्रेंड्स, ये हो गया एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ कंडीशन 1। जस्ट वी ऑल्सो नीड टू रिप्रेजेंट दिस कंडीशन इन ग्राफिकली ऑल्सो। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के लिए आपने 9th में भी काफी बार ग्राफ में पॉइंट्स को प्लॉट किया होगा और काफी सारी कंडीशन को रिप्रेजेंट किया होगा, ग्राफ प्लॉट किया होगा, आई नो दैट। सो अब इक्वेशन मिल गया है हमें, मैक्सिमम या मिनिमम 3 पॉइंट अगर हम फाइंड कर लेते हैं तो उसको हम आसानी से ग्राफ में प्लॉट कर पाएंगे। ओके, तो सबसे पहले ये इक्वेशन के 3 पॉइंट निकाल देते हैं। तो इसके लिए हम टेबल बनाएंगे, टेबल 1 बना लेते हैं। टेबल में हमें हमारी जो ऑर्डिनरी मेथड है हमें पता है, इस तरह से हम टेबल बना लेंगे। इससे पहले हम इसके सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं, वो ज़्यादा सही रहेगा। चलिए, हमारा इक्वेशन आया है x = 7y - 42। ओके, अब y की आप वैल्यू रखते जाइए और आपको x मिलता रहेगा। ओके, सो y की मैं कोई भी पॉसिबल वैल्यू ले लेता हूँ। लेट y = 5, 6, 7, ये 3 वैल्यू मैं ले लेता हूँ और 3 x की वैल्यू मुझे मिलेगी 1 by 1। ओके, तो x = सबसे पहले मैं 5 ले लेता हूँ, तो 7 × 5 - 42, ये कितना हो जाएगा 35 - 42, कितना होगा ये -7 आया। x की वैल्यू आ गई -7, एक वैल्यू मिल गई x की। y की वैल्यू 5 ली थी तो मुझे x की वैल्यू मिल गई x = -7। अब मैं y की वैल्यू ले लेता हूं 6। इफ y = 6 लेता हूं तो x की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, 7 × 6 - 42, ये हो जाएगा 42 - 42, दैट इज 0। याद रखिए, दैट x = 0, ये मुझे दूसरी वैल्यू मिल गई। ओके, अब मैं ले लेता हूं इफ y = 7 लेते हैं तो मुझे क्या वैल्यू मिलेगी, x = 7 × 7, ये इक्वेशन में मैं वैल्यू रख रहा हूं, ये वाला जो हमारा ओरिजिनल है उसमें वैल्यू रख रहा हूं। देखिए, y की जगह पे अब मैं 7 ले रहा हूं, 42 कितना हो जाएगा, ये 49 होगा, ये 42 होगा, 49 - 42 कितना होगा 7, ये हो जाएगा 7। अब हम फ्रेंड्स उसका टेबल बना लेंगे। तो सबसे पहले टेबल बनेगा 3 पॉइंट्स के लिए। देखिए, चलिए, सबसे पहले y की वैल्यू मैंने क्या ली थी, y की वैल्यू मैंने एक बार 5 ली थी, एक बार 6 ली, एक बार 7 ले ली, है ना। तो y की वैल्यू 5 ली थी तो x की वैल्यू क्या मिली थी मुझे, y = 5 लिया तो x मिला था -7 मिला। y = 6 लिया था तो x की वैल्यू मुझे क्या मिली, 0। एंड y = 7 लिया था, मुझे x की वैल्यू क्या मिली, 7 मिली, है ना। 7 लेते हैं तो दोनों की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है, यहाँ पे 7 मिल रही है फ्रेंड्स। ओके, तो सिमिलरली ये कंडीशन 1 के अकॉर्डिंग हमने ये इक्वेशन बनाया, एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन बनाया, और उसके अकॉर्डिंग मैंने 3 कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए जो मुझे ग्राफ में प्लॉट करने हैं, और उसका मुझे एक टेबल मैंने बना दिया। ओके, सो हम दूसरी कंडीशन देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने ये टेबल बना लिया था। अब दूसरी कंडीशन के लिए देखते हैं। सेकंड कंडीशन हमें क्वेश्चन में क्या दिया है वो देख लेते हैं, उसका एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ले लेते हैं, हम बनाते हैं। तो सेकंड कंडीशन क्या है, यहां तक हमने काम कर लिया था। अब ये है हमारी सेकंड कंडीशन। यहां से दूसरी कंडीशन क्या है, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब आफ्टर 3 years। तो 3 years के बाद क्या होगी, आफ्टर 3 years के बाद एज क्या हो सकती है, आफ्टर 3 years आफ्ताब की एज क्या बनेगी, आफ्ताब इज इक्वल टू x + 3। फ्रेंड से याद रखना, अगर आप 3 साल के बाद की एज फाइंड कर रहे हैं तो आपको प्लस करना है, और 3 साल पहले की या कोई भी पहले की एज अगर आप फाइंड कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन लगाएंगे। तो 3 साल बाद की है तो आफ्टर, तो हम यूज करेंगे x + 3। और सिमिलरली
डॉटर की क्या एज बनेगी, डॉटर्स एज बन जाएगी y+3। ओके, दोनों की मैंने 3 साल बाद की एज फाइंड कर ली। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है, 3 years फ्रॉम नाउ, तो 3 साल बाद की दोनों की एज आ गई। आई शेल बी, आई शेल मतलब कौन बोल रहा है, आफ्ताब कह रहा है, आफ्ताब कह रहा है कि आई विल बी 3 times एज ओल्ड एज यू। आफ्ताब कह रहा है कि 3 साल के बाद मेरी एज, मेरी डॉटर की एज से 3 times हो जाएगी। ओके, तो इसकी कंडीशन आफ्ताब की एज है ना, 3 साल के बाद आफ्ताब की जो एज है वो उसकी डॉटर की 3 साल के बाद की जो इसकी एज है उससे कितनी हो जाएगी, 3 times हो जाएगी। तो सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग ये हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x+3 इक्वल टू 3y+9। ओके, अब होगा x इक्वल टू 3y+9 - 3, तो x इक्वल टू 3y, 9 - 3 that will be 6। okay, this is the second conditions and this is the algebraic representation based on second conditions। okay, same work we will repeat here। in first condition we have make the algebraic representation and then make we got the 3 solutions and make the table। again we will do this, again we will try to make the table for this। so we will take variety of value of y, so I hope that will be -1, 0 and 1। these are the very random values, whatever values you can take according to your equations। so there is no any conditions what value should be there of any variables, so don't worry about it। so okay, if y equal to -1 then what's about x, 3। इस इक्वेशन में मैं वैल्यू रख रहा हूं, that will be -1 + 6, ये क्या -3 + 6 that will be 3। if I put y equal to -1 I got x equal to 3। now y equal to 0, if y equal to 0 then x becomes 3 0 + 6, then 0 + 6 then 6, right। now still we have y, if y equal to 1, okay, then what's about x, the x equal to 3 1 + 6, 3 + 6 that will be 9। okay friends, we got the variety of values of variable x when we use the value of y। when we use y equal to -1 I got x equal to 3, when I use y equal to 0 then I got x equal to 6, and when I use y equal to 1 then I got x equal to 9 friends। okay, so for this value again we make the table here, this is the table for first condition, we make another table here। okay, x y for -1 0 and -1 0 and 1। okay, so if y equal to -1 then x equal to 3, then if y equal to 0 then x equal to 6, and y equal to 1 then what's about x, that will be 9। okay friends, we got the two table here for condition 1 and for this is the for second conditions। we use these both table and we will try to plot these points on the graph paper। here we do not have any graph paper, we will try on this board and we will plot the both the points of both algebraic expression and we will try to find the proper graphical solution of these given problems। okay friends, look at the I have tried to make the proper graph but without measurement, that's not proper, but I have tried my best here to make the proper plotting of this point। look at the, this is table for first conditions and we will plot the all the points noted here। look at here, -7 5 x -7 और 5 ये रहा पॉइंट इसका। दूसरा है 0 6, ये रहा 0 6 एंड 7 7 ये रहा 7 7।
तीनों पॉइंट आपको मिल रहे हैं, तीनों पॉइंट में से पास हो जाए ऐसे मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, राइट। और ये जो लाइन स्ट्रेट लाइन मिली है वो फर्स्ट कंडीशन की थी, है ना। दिस इज द ग्राफ फॉर फर्स्ट कंडीशन, उसका इक्वेशन आपको पता होगा, नोट किया होगा, आप यहाँ पे लिख सकते हो। और दूसरा जो टेबल था उसके जो पॉइंट्स है 3 -1, 3 -1 ये रहा, दूसरा है 6 0, ये रहा 6 0, एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट 6 है, वाई कोऑर्डिनेट 0 है, इसलिए पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे करेगा, सो दैट विल बी 6 0। एंड थर्ड वन इज 9 1, सो दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट 9 एंड दिस इज द वाई कोऑर्डिनेट 1, सो point will be lying here, that will be 9 1. Now join 3 points and make this straight line like this. This is the lines for condition 2. So friends, this is the graphical representations of this given word problem. Before this we have represent all the condition algebraically. Right now we have tried to represent these problems in graphically. So friends, we have lot of questions in this exercise, and similarly we have to work like this, and I hope you got my topic, and you will try to solve other problems in this exercise. We'll follow this rules and follow this system how to solve this kind of problem. So first we will try to represent all the condition algebraically, then we will, from these equations we will try to find the coordinates like this, we will make the table according to conditions, and after this we will try to make the graphs and plotting the points and join the lines, and we will write here, I have written first condition, but here we will write the equations here according to first condition, and here we will write the equation for condition 2. So by this way we are going to complete these options problems, and next we will try to talk about the consistent and inconsistent solution. Okay, see you.